हेलो एवरीवन, आई एम ब्लूमिंग फायर और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ साइकोलॉजी का टॉपिक जिसका नाम है डिजिटल वेलनेस इन द मॉडर्न एज, जिसमें हम समझेंगे फोमो के बारे में, जोमो के बारे में और द साइकोलॉजी बिहाइंड हेल्दी टेक्नोलॉजी हैबिट्स इन अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। तो हम समझेंगे क्या होता है फोमो, जोमो और साइकोलॉजी समझेंगे कि हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हम उसे कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट स्लाइड। द साइकोलॉजिकल द साइकोलॉजी बिहाइंड फोमो। सो व्हाई वी फियर मिसिंग आउट। फोमो का फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ छूटने से डरना। क्यों डरना, अब हम ये पढ़ेंगे। FOMO, fear of missing out, is a pervasive anxiety that others might be having a rewarding experience we are absent from. मतलब वो मुझसे ज़्यादा खुश है, काश मेरे पास भी उनकी जैसी खुशी होती। तो उस एंग्जाइटी में रहना कि यार देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, बस उसने उस कैफ़े में फ़ोटो खिंचवाई और मुझे देखो मैं यहाँ पे रहती हूँ, घर में ही रहती हूँ, बाहर नहीं जा पाती। तो हैविंग एन एंग्जाइटी अबाउट इट इज़ व्हाट फियर ऑफ मिसिंग आउट basically is, ठीक है। Rooted in our evolutionary need for social connection, this phenomena has been amplified exponentially by social media. Already लोगों में comparison की जो feeling होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। This is just basic human flaw, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया से वो और बढ़ रही है, क्योंकि पहले तो आप जब मिलते थे लोगों से तब देखते थे, लेकिन अब तो आपके हाथ में मोबाइल 24/7 है। आप फ्लैश ऑफ सेकंड्स में आप इंस्टाग्राम जो है खोलेंगे और आपके पास 10 चीज़ें आ जाएँगी, खूबसूरती, ज्वेलरी एंड व्हाट नॉट। सो यू कैन फील कंपैरेटिव एंड आफ्टर दैट you will feel anxious about it. So that is what FOMO is, like fear of missing out from joy they are having but we couldn't. Okay. So study shows that FOMO activates the same neural pathways associated with survival threats, triggering cortisol release and heightened emotional responses. This is a very big deal, guys, because survival threats is just so extreme in a manner that when you're about to something's about to happen and you don't live, you just survive, like आप जी नहीं रहे हो, आप बस गुजार रहे हो वाली thing types. Okay, so that is what FOMO is. Now its neurological impact. Dopamine driven reward loops create compulsive checking behaviors. Again and again you check, wow, she did upload that, she did that trend, now she's doing this, what am I doing, comparison. Okay, so इसका neurological impact क्या पड़ता है कि डोपामीन आपको चाहिए होता है बट आपको मिल नहीं रहा होता, ठीक है। देन सोशल कंपैरिजन, कांस्टेंट अपवर्ड कंपैरिजन erodes self esteem and life satisfaction. Of course it does. अगर मैं किसी से कोई if a girl is 10 on 10 and I feel that I am 8 on 10, okay, I'll compare myself with her. But then again, your perception is your perception. Maybe others see you as 10 on 10. It depends on the eyes of the beholder, sort of thing. So आपकी सेल्फ एस्टीम गिरती जाती है कि यार ये देखो, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर विल बी मोर ब्यूटीफुल पीपल देन यू, there will be more intelligent people than you, there will be more smart people than you, but then what is your strength is that nobody will be you, and that uniqueness you should have from within, that sort of healthy amount of self-confidence you should have it, that okay, there will be people who are more than me, but then nobody is me, and these people crowd me, sort of thing. Exactly, that's what you need. Okay, healthy self-confidence. तो social comparison हमें नहीं करना है, okay, नहीं करना है। बट फोमो का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उससे आपके दिमाग पे न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा कंपैरेटिव आप बन जाते हैं, सोशल कंपैरिजन करते हैं, टाइम एंग्जाइटी। ऑफ कोर्स आपको लगता है कि इसने 23 में ये सब अचीव कर लिया, आई एम 25, व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ। सो दिस इज व्हाट फोमो क्रिएट्स, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये इतना कर रहा है, मैं कहाँ हूँ। ओके, द राइज ऑफ जोमो, नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट जोमो। व्हाट इज जोमो? Jomo means joy of missing out. I'm out of the shit, sort of thing. The rise of Jomo, embracing the joy of missing out. Jomo represents a mindful counter movement, intentional choice to disconnect and find containment in the present moment, rather than viewing absence as loss. Jomo practitioners celebrate the freedom of unplugging in a manner that I work as a consistent and hardworking person. Okay, so I would want Jomo. Okay, I'm ambitious type, for example. So मेरे लिए वो काम नहीं करेगा that I'm scrolling reels for hours and hours, and it won't work for me because I have ambitions to fulfill. I have desires to fulfill, to act on. So what will I do? I'll just delete all of this social media's thing, and I'll be very happy. Look, they're wasting time, and I'm happy because I'm not. At least I did something productive. That is what JOMO is, the joy of missing out. That God, I'm so happy. I'm so glad that I'm not here. Okay, so what does it do? Recognition, acknowledgement that not every moment needs documentation or digital validation. Even though I can have pictures of me, going somewhere, achievements, but
It's not necessary to post it. One more thing comes at JOMO में, which is very good. FOMO means external validation. Please remember this. It's a very important point I'm telling you, ठीक है? And JOMO means internal validation. In a manner कि जो FOMO है वहाँ आप प्रिटेंड कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, मास्किंग कर रहे हो, ठीक है? आप प्रिटेंड कर रहे हो विथ फिल्टर्स, यू आर गोइंग देयर, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, you more have insecurity, external validation. You will project and present yourself the best, okay, over there, even though you feel zero from within. एंड देन जब आपने वो चीज़ पोस्ट कर दी तब भी आपके में होगा इसको पसंद नहीं, उसको पसंद नहीं, इसके लिए डाली थी, इसका कमेंट नहीं आया, उसका लाइक नहीं आया. दिस इज़ एक्सटर्नल वैलिडेशन. पूरा पूरा दिन खराब हो जाता है लोगों का क्योंकि उनके पसंदीदा लोगों ने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, वैसे कमेंट नहीं किया जैसे उनको चाहिए था, और नॉर्मल लोगों ने ज़्यादा कर दिया बट बिलवड लोगों ने नहीं किया. एक्सटर्नल वैलिडेशन, जब तक वो आपको वैलिडेट नहीं करेंगे क्या आप कुछ नहीं हैं, आप बहुत कुछ हैं, आपको समझने की ज़रूरत है. दिस इज़ व्हाट फोमो क्रिएट्स. नाउ जोमो इज you can just feel the moment and you can click it also, okay, you can capture it also, but you are validated from within that I am happy, I healthy self-confidence, healthy self-esteem. And a healthy person does not say I'm a 10 on 10, okay. Okay, with confidence they can, but then a healthy person always sees flaws to improve from within, okay. Not an obsessive, compulsive, perfectionist sort of type. No, I'm not talking about that. A healthy person sees flaws so that they can always improve. A person who sees no self improvement is needed is a narcissist. That is a different category of psychology. We're not going there. Let's just study the rise of JOMO. हमें याद रखना है FOMO means external validation. ठीक है, externally लोग मुझे validate करेंगे, उससे मेरी self worth बनेगी. And here JOMO, joy of missing out, means internal validation. Like आपका वैलिडेशन, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इट्स एड ऑन टू माई पर्सनैलिटी, थैंक यू. बट इफ़ यू डोंट, आई एम स्टिल सर्वाइविंग, आई एम स्टिल लिविंग, आई एम स्टिल थ्राइविंग विदाउट इट बिकॉज आई एम वैलिडेटेड बाई माई ओन सेल्फ. मुझे पता है मैं क्या हूँ. आप बता रहे हैं, शुक्रिया आपका. लेकिन अगर आप नहीं भी बताएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप गलत भी बताएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ. और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, ना ज़्यादा ना कम, जो परफेक्ट अमाउंट है, ताकि आप इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है. तो रिकॉग्निशन मिलता है आपको, और ये पता चलता है कि हर चीज़ को रिकॉर्ड करना और दूसरों को दिखाना, उनकी गेज़ को क्राव करना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. इंटेंशनैलिटी आपका कॉन्शियस डिसीजन होता है. इट टेक्स स्ट्रेंथ टू अवॉइड व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ योर एज आर डूइंग, बिकॉज़ यू डोंट वांट टू बी लाइक देम, बिकॉज़ यू वांट टू डू समथिंग यूनिक, एंड दैट इज़ गुड. कंटेनमेंट, finding genuine satisfaction in offline experiences and real world connections. Instead of doing online chatting or something, I'd meet a person and I'd feel more satisfied, genuine happiness, okay. तो contentment होता है आपके अंदर, आपके अंदर एक थोड़ी पीस होती है that you're not doing, क्योंकि आपका attention span उनसे बहुत बेहतर होता है जो इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं. आप 3 महीने का डोपामीन डिटॉक्स आप लेके देखें ना, आपका ब्रेन जो है ना बड़े कंटेंट पे चाहेगा कि मैं ये देखूँ, मैं नॉलेज की चीज़ें गेन करूँ. बनस्बत वो चीज़ें जो मुझे 15 सेकंड में स्किप करनी पड़ रही हैं, कभी कभी तो रील्स और शॉर्ट्स और छोटी हो जाती हैं. आप सोचिए आपका अटेंशन स्पैन कितना ज़्यादा डिके हो जाएगा. और फिर आप जब इसको आप जब बेहतर इम्प्रूवमेंट की तरफ आएँगे ना, आपको बहुत टाइम लगेगा. वही वो जो ये ऑलरेडी कर रहा है ना, वो चीज़ मिनटों में कर लेगा. फिर आप अगेन सेल्फ एस्टीम आपकी लो हो जाएगी कि यार ये तो ऐसे कर लेते हैं, मैं ही ऐसे करता हूँ, क्योंकि है ना, आपको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है. लिबरेशन, आपको एक फ्रीडम महसूस होगी कंपैरिज़न से. आपको फ्रीडम होगी कि आप गुलाम नहीं हैं किस चीज़, अपने नफ्स के. गुलाम नहीं है कि यार चलो रील स्क्रॉल करते हैं, बस 5 मिनट और 1 घंटा निकल, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट 2 घंटे निकल गए. अच्छा चलो अब तो उठ ही जाती हूँ. अब एंग्ज़ायटी अलग हो रही है कि यार इतना पढ़ना था, 2 घंटे तो वेस्ट कर दिया. अब उसका गिल्ट अलग है, एंग्ज़ायटी अलग है. दिस इज़ व्हाट फोमो क्रिएट्स इन. जो हमें जोमो में फ़ील होता है कि वॉव 2 घंटे, यार मैंने इस 2 घंटे में ये कर लिया, आई फ़ील सो प्रोडक्टिव, अब मैं इसके साथ वो कर लूँगी. आप एक मल्टीटास्कर बनते हैं. आपका, और फिर आपका दिमाग ब्रॉड होता है जब आप एक साथ 2-3 चीज़ें हैंडल करते हैं, वो भी अच्छे से. तो इंटरनली आपको वैलिडेशन मिलता है कि वाओ आई डिड दिस, आई कैन डू दैट टू, So JOMO brings happiness that, oh, I'm missing this out. That's so cool, sort of thing. Okay. Liberation. Now, the neuroscience of digital addiction. How technology hijacks our brain. तो अब हम न्यूरोसाइंस पढ़ेंगे. जब भी हम फोमो जोमो पढ़ रहे हैं, एक न्यूरोसाइंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बायोलॉजिकली कनेक्टेड है. और साइकोलॉजी के पीछे जो साइंस है, अगर हमें वो नहीं पता तो हमारी साइकोलॉजी बहुत शैलो है. इन अ मैनर कि 2-3 मतलब ये ब्रांचेस हैं जो साइकोलॉजी की हैं, ये इंटरकनेक्टेड ही हैं. इसका एक्सप्लेनेशन बताती है व्हाई एंड हाउ एंड व्हाट. ओके, सो these are the things which are very important when you're giving a psychology answer or something. You need to mention the neurological impact of that particular thing in your answer. Okay, so the neuroscience of digital addiction, sorry. Digital platforms are engineered using principles of behavioral psychology to maximize engagement.
वो क्या करते हैं, वो साइकोलॉजी लगाते हैं इसमें भी कि कौन-सी चीज़ें हैं जो लोग ज़्यादा देख रहे हैं, मैं वैसा ही कंटेंट बनाऊँ, जो हम बिल्कुल वैसा ही जो ट्रेंड में चल रहा होता है, आप वही करते हो, उस वक़्त वो वायरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि लोगों को अभी ज़्यादा क्या पसंद आ रहा होता है। तो जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो वैसी ही चीज़ें बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम है, उसपे लाइक का ऑप्शन है ना? उसपे कमेंट का ऑप्शन है, उसपे शेयर का ऑप्शन है। तो लाइक आपको जितने लाइक्स मिलेंगे, आप उतने ज़्यादा खुश होगे कि और मेरे इतने लाइक्स आ गए, अरे मुझे इतना मिल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब का एग्ज़ाम्पल ले लें, सब्सक्राइबर्स आपके हैं, आपके लाइक है, आपका डिसलाइक है, आपके कमेंट सेक्शन है। लोग एंग्ज़ायटी में भी जाते हैं, अरे मेरे ये नहीं बढ़ रहे, मेरे वो नहीं बढ़ रहे। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है? डिजिटल एडिक्शन है लोगों को, है ना? The variable reward schedules for the same mechanism behind slot machines keep us scrolling indefinitely. तो एक स्लॉट मशीन होती है जिसमें हमें अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड मिलता है जिसमें हमें पता नहीं है क्या मिलेगा, तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि अगला क्या। और जब हमें मिलता है तो वे लाइक वो आई गॉट दिस व्हाट डिड यू हैव सॉर्ट ऑफ थिंग। तो जो न्यूरो साइंस है ना वो ऐसी है कि डोपामीन रील्स शॉर्ट्स और इन सब चीज़ों से लेने में जो है ना it feels like a slot machine, like unpredictably, attractive. ये चीज़ें आपको लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत डीके करती हैं, नो दैट, ठीक है? तो ईच नोटिफिकेशन ट्रिगर्स अ डोपामाइन रिलीज कि अभी अभी मेरा मोबाइल रखा है, ओह टेक्स्ट फ्रॉम फेवरेट पर्सन, वो ओह 500 likes, whoa, sort of thing. So you never know what the next notification is, and you're like, wow. Okay, so each notification triggers a dopamine release. What is dopamine? A hormone which makes you feel uplifted for moments, which makes you feel like excited, wow, you feel like dang, this is challenging but I love it, sort of thing. So that is what dopamine is. Okay, so creating powerful conditioning that makes our brain craft the next digital hit. If I Let's assume that I posted something and I had 500 likes and I'm like, oh, when will I have 5 million likes, sort of thing. So when you graph like, okay, next step I'll work more hard for this and I'll get more likes, sort of thing. So ऐसी चीज है वो, ठीक है? मतलब आपको आपको पता भी नहीं चल रहा और आप उसके गुलाम बने हुए हैं। किसके? सोशल मीडिया के। डिजिटल एडिक्टेड है आप, ठीक है? ट्रिगर नोटिफिकेशन होती है तो आप ट्रिगर, आपको होता है ना कि अरे वाह किसका मैसेज आया देख लेती हो, एक्शन, फिर आप उस पर एक्ट करते हैं, आप जल्दी से अपना मोबाइल चेक कर लेते हैं, फिर रीइंफोर्समेंट, फिर आप फिर वेट करते हैं, फिर आप फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके पास रैंडम है, अरे वाह, फिर आपने चेक कर लिया, फिर आपने मोबाइल रखा, फिर आपको फील हुआ अरे मगर उसका क्या हुआ, अरे इसका क्या हुआ, उस स्टोरी का क्या हुआ, ऐसे ही पूछती हूँ। तो रीइंफोर्समेंट, ठीक है, उसके बाद रिवॉर्ड, फिर आप रील स्क्रॉल करने बैठ गए, फिर आपने जो है ना देखा और आपको आपके टाइप की कोई रील मिल गई, अगर कोई बीएमडब्ल्यू लवर है उसको बीएमडब्ल्यू की रील मिल गई, अगर जिसको जो पसंद है, कोई फूडी है तो उसको एक खाने की रील मिल गई एंड लाइक वेरी वेरी हैप्पी, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड टू बी अ स्लेव ऑफ डिजिटल, this is what addiction is considered very in a wrong behavior, obsession, addiction, because addiction is when you don't want to but still you keep doing it just because you cannot withdraw from it. That is what addiction is. So addiction is not good. You can use it for some time and then you can leave it, but then addiction of anything, obsession of anything is in not within a healthy boundary is not good at all. That is very seen in a negative sense, so you need not to do this. Now, digital overwhelm, recognizing the signs and symptoms. Digital overload manifested through psychological, physical and behavioral symptoms. Awareness is the first step toward reclaiming balance and implementing healthier technology habits. Now, overwhelm हो जाना, किसी चीज़ से overstimulated हो जाना, overwhelm हो जाना means आपको पता ना होना, ओवरवेल्म मतलब आपको पता ना होना कि आपको इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, आपका इमोशन इतना स्ट्रांग हो, ठीक है? तो मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स, आपको क्या करना चाहिए? एंग्जायटी व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम डिवाइसेस, ठीक है? डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग ऑन सिंगल टास्क, स्लीप डिस्ट्रप्शन, रेसिंग थॉट्स, डिक्रीज एबिलिटी टू बी प्रेजेंट। देखिए क्या इफेक्ट्स हैं इस चीज़ के। जब डिजिटल ओवरवेल्म फील होता है, मतलब आपको पता ही नहीं है कैसे रिएक्ट करना है, देन दीज आर द थिंग्स व्हिच यू सफर फ्रॉम। फिजिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होता है? आई स्ट्रेन एंड सर दुखता है, ठीक है? आपके नेक एंड शोल्डर टेंशन होती हैं, डिस्टर्प्टेड rhythms, sedentary lifestyle consequences. See, behavioral changes, checking phone during conversations, phantom vibration syndrome, neglecting the real world responsibility, reduced face to face interaction. तो क्या होता है? सबसे पहले मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स आते हैं, ठीक है? एंग्जाइटी होती है जब मोबाइल नहीं आ रहा, मेरा मोबाइल का है, मैंने उसे चेक नहीं किया, पता नहीं किसका मैसेज आएगा, पता नहीं किसका कॉल आएगा, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है? कि जब आपको सोशल मीडिया पूरा अपने कंट्रोल में ले लेता है। यहाँ देखें, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा, और जब माइंड आपको कंट्रोल करेगा तो समझ लें आप आधी चीज़ हार चुके हैं, क्योंकि आपका दिमाग जो आपकी स्कल में है वो ही आपके कंट्रोल में नहीं है। दुनिया तो आप भूल जाएं, फिर वो आपको कंट्रोल कर रहा है।
और जब दिमाग आपको कंट्रोल करने लगे, आप आधी मैदान जंग हार चुके हैं। क्योंकि वो जो एम्बिशियस होता है, वो जिसके पास गोल्स होते हैं, वो अपने दिमाग को कंट्रोल करता है। उसका दिमाग भी, वो भी इंसान ही है, उसका दिमाग भी कहता है काश मैं ये कर पाऊँ, काश, वो कहता है नहीं, करना तो मुझे ये है। तो वो डिटर्मिनेशन की एबिलिटी जो होती है ना आपकी, वो धीरे धीरे डिके हो जाती है, बट इट्स ओके। ह्यूमन का जो ब्रेन है ना, उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ठीक है। यानी आप अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे तो आप फिर अच्छे बन सकते हैं। कितना बड़ा एक नेमत कह सकते हैं हम, कितना रिवॉर्ड है ये हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, ठीक है। तो आपके साथ क्या होगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आपकी तो आदत हो गई है 15 सेकंड में स्क्रॉल करने की, तो आप सोचेंगे यार दिल नहीं लग रहा, वो देख लेती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ। अटेंशन स्पैन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अब नींद नहीं आएगी रातों को, क्योंकि आपको डिलूलू फील हो रहा होगा। अगर आप ड्रामा देखते हैं तो आपको लगेगा वाओ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, आई विश इफ आई वुड हैव द सेम पर्सन इन माय लाइफ। या फिर कुछ भी, अगर आप गेम खेलते हैं तो मुझे इसमें ज़्यादा स्कोर करना है, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस सो दैट यूड अंडरस्टैंड बेटर। डिक्रीज एबिलिटी टू बी प्रेजेंट। अब you know you'll be more in your own internal world, which is very shallow, in a manner that someone's saying something but you're like, let's just think about it. How would we feel if we post the next post like that उस dress में मैं पहनूंगी, कितने सारे likes आएंगे, it would be so fun, and the person sitting in front of you is like, hello, are you there? And you're like, yeah, I mean, I am, but I'm not mentally present. So that sort of things starts to happen. You are living in your own world, which is shallow, because it's not even your internal world, it's the world based on social media, which will collapse one day. Because at the end you will feel such a great time waste you did, because these things are not to go in hand, but instead हम रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कुछ वक्त दे सकते हैं, मगर पूरा वक्त उसे ही नहीं दे सकते। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। अब आपको क्या फिजिकल मैनिफेस्टेशन होंगी ना, तो आपको उस वक्त क्या फील होने लगेगा जब आप इतने ओवरवेल्म हो जाएंगे। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं, मीन्स यू नीड टू कट ऑफ सोशल मीडिया एज सून एज पॉसिबल, ओके। तो क्या होगा, आपकी जो आंखें हैं वो रेड हो जाएंगी, या आपकी आंखों में थोड़ा दर्द होगा, दुखने लगेंगी, ठीक है। माइग्रेन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं स्क्रीन की वजह से लोगों को। सर दर्द होगा, नेक शोल्डर टेंशन होगी, ठीक है। आपका जो हार्ट रिदम है वो भी, एंग्जाइटी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो ऊपर नीचे होती रहेंगी चीज़ें, ठीक है। आपकी कॉन्सिक्वेंसेज लाइफ के थोड़े जो है ना, आपकी लाइफ जब आप मेंटली ऐसे इल हो रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें होंगी, तो ऑब्वियसली आपका लाइफ स्टाइल बहुत डाउन फील करेगा, ठीक है। बिहेवियरल चेंजेस होंगे, आप कोई आपसे बात कर रहे हैं तो भी आप फ़ोन चेक कर रहे हैं, मतलब आपको लगेगा अरे वाइब्रेशन आई है, अरे नोटिफिकेशन आई है, आप मतलब अगेन फ़ोन चेक कर रहे हैं। मम्मी ने कुछ काम दिया, बट यू आर लाइक, मॉम जस्ट 5 minutes more, आई एम टॉकिंग टू माई फेवरेट पर्सन, और आई एम प्लेइंग दिस गेम, और आई एम वॉचिंग दिस सीरीज, एंड मॉम इज़ लाइक ओके, बट आई वाज अबाउट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू लाइक कि अभी 5 मिनट बाद, मतलब आप अपने जो रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनको ही नेग्लेक्ट करने लगेंगे, और आप सोचेंगे कि लोगों से मिलके क्या ही होता है, इट्स सो स्टूपिड, इट्स सो शैलो टू मीट पीपल, दे वुड जस्ट हर्ट मी, दे वुड जस्ट ब्रिंग समथिंग आउट दैट आई वुडंट लाइक, लुक एट माई फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स, दे डोंट हर्ट मी, दे अंडरस्टैंड मी। ये इल्यूजन जो है ना, वो आपके ऊपर बन जाएगा, ठीक है। नाउ बिल्डिंग हेल्दी बाउंड्रीज, अब हम इसको कैसे जो है ना लिमिट कर सकते हैं साइकोलॉजिकली, और हम कैसे अपनी बाउंड्रीज को हेल्दी बना सकते हैं, हम इसके साथ कैसे लिमिट्स जो है ना ला सकते हैं। तो क्रिएट टेक फ्री जोन्स, मतलब एक कोई ऐसा रूम बनाएं, या कोई ऐसी एक प्लेस बना लें जहाँ पे आप सोच लें कि यहाँ पे मैं लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं लाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में टेरेस पे चले जाएं जहाँ खुला आसमान हो, एक पार्क में जाकर बैठ जाएं अपने पास, घर के पास वाले, या कहीं पर भी, मतलब आप एक ग्रीनरी, आई वुड सजेस्ट कि अब आप ऐसा बना रहे हैं तो कोशिश करें कि ग्रीनरी की तरफ जाएं, ओके। और उस वक्त आप मेडिटेशन करने की कोशिश करें, या फिर आप सिंपली जस्ट नेचर को देखें कि कितना खूबसूरत है, कितने तरीके के पेड़ हैं, कितने तरीके के फूल पत्ती हैं, कितने तरीके, मतलब कितना खूबसूरत आसमान है, कितने तरीके के बर्ड उसमें हैं। आप सोचें कि इस सब को बनाने वाला भी कोई है, वो कैसा होगा, मतलब क्यूरियोसिटी आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। आप टाइम पैरामीटर्स बनाएं कि यार फॉर एग्जांपल मैं आधे घंटे रील स्क्रॉल करूँगी क्योंकि मुझे पसंद है, बट देन आई विल हैव टू डू दिस बिकॉज आई हैव टू अचीव समथिंग इन माई लाइफ। तो यहाँ हेल्दी बाउंड्रीज भी आप यूज़ भी करें, लेकिन आपका टाइम भी ठीक है, ठीक है। तो मॉर्निंग रूटीन प्रोटेक्शन, प्लीज़ देखें कि उठने के जो 30 और 60 मिनट्स बाद हैं आप उसमें मोबाइल यूज़ ना करें, रील स्क्रॉल ना करें, क्योंकि जैसे आप दिन स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि आपका दिन वैसे ही जाता है, वरना आप गिल्टी भी फील करते हैं कि अगर मैं 9 बजे से उठी हूँ, मैंने 3 घंटे मोबाइल स्क्रॉल करने में लगा दिए हैं, अब मैं सोच रही हूँ कि यार मैं 3 बजे से पढ़ने बैठूंगी, तो वो जो मेरा कितने 6 घंटे बर्बाद हो गए, वो 3 बजे से भी मैं गिल्टी फील करूँ कि यार मेरा एग्ज़ाम था, मुझे पहले से ही पढ़ लेना चाहिए था। तो एंग्जाइटी ये सब होने लगती है। इसीलिए मॉर्निंग में अपना उठें, अपना काम करें, फ्रेशन अप हो, और जो भी कुछ प्रोडक्टिव काम है, बीट वॉक, बीट ब्रेकफास्ट, एंड डू समथिंग प्रोडक्टिविटी से अपना दिन स्टार्ट करें। नोटिफिकेशन को डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाएं पढ़ते टाइम, किसी भी कंसंट्रेटिंग टास्क के टाइम, और यूजुअली, ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे कोई चीज़। जब
सोच लें कि जब मैं मस्ती कर रही हूँ तो ठीक है करूँगी, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठूँगी तो मैं पढ़ने वाला पढ़ने बैठूँगी। देन नथिंग कैन स्टॉप मी एवर, ओके? फिर आपको अपना मोबाइल साइड में रखना है, आपको बस चीज़ों में मीनिंग सर्च करने को, चाहे तो उठाना है, कोई वीडियो देखनी है, पढ़ाई की तो उठाना है, देन यू विल हैव टू वर्क लाइक नथिंग, ओके? देन आप यूसेज लिमिट्स आप अपने जो है ना मोबाइल में लगा दें कि इससे ज़्यादा 1 घंटे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, और उसमें आप यूसेज वो होता है ना जो डिजिटल वेलबीइंग, उसमें भी आप लगा दें, वो वाला मोड सेट कर दें कि नहीं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। एंड देन मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई भी चीज़ जो आप करने वाले हैं ना, आप उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब आप एक बार अपने दिमाग से ठान लें ना कि नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, तो वो चीज़ जब आपके अंदर खुद में होगी ना, तो आपको वैसे भी कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत शैलो हैं, क्योंकि आप ये कर सकते हो और आप ये हटा भी सकते हो। आप फिर कह सकते हो कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप सोचो कि आपकी बात की वैल्यू क्या है, वो भी आपके लिए। और इसका मतलब यही है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे, दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, और जब दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, तो जनाब बर्बाद हैं आप, ठीक है? माइंडफुल कंजम्पशन, क्यूरेटिंग योर डिजिटल एनवायरनमेंट। अब उसको माइंडफुली कंज्यूम करना है, यानी कोई आप चीज़ ले रहे हो ना नॉलेज की, तो आप उसको उसको माइंडफुल, मतलब उसको ऐसे नहीं लेना आपको कि कोई भी जस्ट आप अजीब कुछ भी कंटेंट आप कंज्यूम किए जा रहे हैं, आपको माइंडफुल कंटेंट, यानी आपको ऐसा कंटेंट लेना है जिससे आपको नॉलेज मिले, लर्निंग मिले, क्यूरियोसिटी मिले, जिससे आपको थोड़ा फन फील हो, बट ऐसा नहीं जो बिल्कुल स्टूपिड बैड कंटेंट हो, क्योंकि यू आर व्हाट योर सबकॉन्शियस इज, and in conscious you create your subconscious. For example, 95% जो चीज़ मैं दिन में that is what subconscious becomes, ठीक है? और कॉन्शियसनेस में मैं वही करूँगी जो मेरा सबकॉन्शियस करवाएगा, ओके? दैट इज़ व्हाट इट इज़। डिसीजन सबकॉन्शियस से हम लेते हैं, देन 5 सेकंड बाद ऐसे कहते हैं कि कॉन्शियस में हम वो चीज़ करते हैं। सो योर सबकॉन्शियस ऑलवेज़ नोज़, ओके? तो जो आप करोगे ना वो आप बनते जाओगे एंड यू वोंट नो, ओके? तो carefully choose what food we consume. This is very important. They say you are what you eat. Means healthy. Try to eat healthy, okay? Consume nice. Be productive. Work for yourself, okay? The content we expose ourselves to shapes our thoughts, emotions, and worldview. Of course it does, okay? तो जिस चीज़ में आप रहेंगे, आप आपकी थिंकिंग वैसी डेवलप। अगर कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा ड्रामा, सीरीज़, मूवीज़ देखता है ना, उसकी जो उसकी जो थिंकिंग होगी वो वैसे नहीं सोचेगा कि एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ये हो गया, ये हो गया। वो सोचेगा अभी बिछड़ी है, फिर मिलेगी, हमारी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, और वो ड्रामेटिक इफ़ेक्ट्स लाएगा क्योंकि उसकी थिंकिंग में ही वो है, क्योंकि उसने देखा ही वो है, ओके? अगर कोई बहुत ही ज़ुल्म ज़ालिम जगहों पर रहता है, जहाँ बस उसने मार-पीट और बदतमीज़ी देखी है, वो वैसा ही बनेगा क्योंकि उसने देखा ही वो ही है, ठीक है? अनलेस एंड अंटिल यू चेंज योरसेल्फ। तो अपनी फ़ीड को जो है ना अच्छा रखें, कंपैरिज़न नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो क्यूरियस हैं, जो आपको कुछ करने के लिए बता रहे हैं, जो आपको लर्न, इवन दो इफ यू सिट विद योरसेल्फ 5 मिनट्स ना, सुकून से, विदाउट मोबाइल, विदाउट एनीथिंग, दैट 5 मिनट्स इज़ लाइक लग्ज़री, ओके? तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आप अच्छी-अच्छी चीज़ों को सब्सक्राइब करें, आप एजुकेशनल चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्वांटिटी पे ना जाएँ, ठीक है? मतलब क्वालिटी चूज़ करें, कि ये नहीं कि कुछ भी आपने कंज़्यूम कर लिया और अब आपका दिमाग ऐसा हो रहा है कि अरे ये वो, नो, अच्छी चीज़। पर्पसफुल एंगेजमेंट, ओके? बिफोर ओपनिंग एन ऐप, आस्क योरसेल्फ व्हाट स्पेसिफिक पर्पस यू हैव, ओके? क्या काम है? इंस्टाग्राम खोल रही हूँ, मुझे अभी क्या काम है? ओके, मुझे नोट्स माँगने हैं, फाइन, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करती है, देन आई नीड नोट्स फ्रॉम हर फ्रॉम इंस्टाग्राम सो दैट शी कैन सेंड इट ऑन व्हाट्सएप, दैट्स फाइन। बट इफ आई एम लाइक आई जस्ट स्क्रॉल 5 minutes of reels and I'm like 2 hours later, oh, it sucks. So that's not what you have to do, okay? You have to avoid aimless scrolling driven by boredom or habit. अब मैं बोर हो रही हूँ यार, जब तक नोट्स नहीं भेजती थोड़ी रील देख लेती हूँ। नो, बेब, अंडरस्टैंड दैट थिंग, ओके? हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमें पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे होते हैं जो तरसते हैं पढ़ने को। पढ़ाई इतनी बड़ी लग्ज़री है ना, आपके माइंड को डेवलप करती है। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करें। इट इज़ सो, यू आर सो लकी दैट यू आर स्टडीइंग, दैट यू आर नोइंग दीज़ थिंग्स। पीपल डोंट इवन नो अबाउट इट। पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, okay? Because once you get into these things, it makes you who you are. And when these things shapes you who you are, know that you're very shallow. Know that you're very hollow. Okay? You will feel such a void. And you need to be complete from within so that the external world cannot rule you, my dear. Because a person ruled by world is a person who will collapse again and again. उस इंसान को हराना बहुत मुश्किल है जो मान जाए कि अरे आज तो मैं अच्छी नहीं लग रही यार, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही, एंड दे फील बैड। उस इंसान को हराना, उस इंसान को बुरा फील करवाना बहुत ईजी है। मगर जो इंसान अपनी सेल्फ वर्थ जानता है, जिसे पता है मैं अच्छी हूँ, मैं कुछ भी पहनूंगी अच्छी लगूंगी, नाउ दिस इज नॉट बैड काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस इज दिस काइंड ऑफ सेल्फ वर्थ यू शुड हैव, ठीक है? बट यू डोंट हैव टू बी अ जोकर एंड नॉट टू वेयर नियॉन ऑरेंज एंड पिंक at the same time, sort of thing. But even if you like it, it's your taste, you can, okay? But again,
Okay, you need to do something which is socially accepted too, but again, not just for their acceptance, but for who you are too. And if you still like it, go for it. Okay. नाउ डिजिटल डिटॉक्स स्ट्रैटेजीज, कैसे हम जो है ना डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर मेंटल क्लैरिटी। स्टार्ट स्मॉल विथ माइक्रो डिटॉक्सेस, ठीक है। पहले अपना टाइम धीरे धीरे कम करो अपना, जैसे कि आप 3 घंटे जो है ना अपना मोबाइल पे इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आप उसको 1 घंटा ले आएँ। स्टार्टिंग एकदम जब डे 1 से करेंगे तो 15 मिनट से करें, 20 मिनट से करें, फिर 30 मिनट। ये ध्यान रहे कि मुझे स्टॉप कहाँ होना है और क्यों करना है, क्योंकि ये मुझ पे बैड इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? उसके बाद अपनी जो हैबिट्स हैं आपकी डिजिटल हैबिट्स, उसको किसी अच्छी चीज़ से आप वो कर लें कि आप मान लें 1 घंटा रील स्क्रॉल करते हैं सुबह, तो आप सोच लें कि यार मैं वॉक करती हूँ और वॉक करते-करते एक पॉडकास्ट सुन लूँगी पढ़ाई की। ठीक है, आपको लगेगा वॉव! आई हैव नॉलेज, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों से चेंज करें, रिप्लेस करें अपनी हैबिट्स को। आप अपनी बाउंड्रीज़ को कम्युनिकेट करें। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। से नो व्हेन यू हैव टू से नो, से येस व्हेन यू कैन मैनेज इट, ओके? अपनी बाउंड्रीज़ बनाएँ। हर वक़्त दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल ना रहें, क्योंकि आपकी अपनी एक लाइफ़ है। सब अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाएँगे। आपको गम रह जाएगा कि मैं सबके लिए था और मेरे लिए कौन था? इसीलिए वो मौका ना आए, इसीलिए आप अपनी लाइफ़ को मेन कैरेक्टर की तरह जिएँ, ताकि कोई दूसरा आपको डिक्टेट ना कर सके। अगेन आई वुड से द सेम थिंग। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, तो आप सुखी रहते हैं, और जब माइंड आपको कंट्रोल करता है, तो आप दुखी रहते हैं, ठीक है? नाउ यूज़ फिज़िकल टूल्स, ठीक है? आप जो है ना बहुत सारी फिज़िकल चीज़ें, क्लॉक, ऐसी चीज़ यूज़ करें जिससे आपको मोबाइल की नीड थोड़ी कम हो, ताकि आप उसको थोड़ा छोड़ने में आपको आपका एडिक्शन कम हो, ठीक है? रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट, आप अपने एक्सपीरियंसेस को लिखें कि यार आज मैंने ये खूबसूरत चीज़ देखी, आज मैंने वो बर्ड देखी, इतनी क्रिएटिव चीज़ देखी। उसको एक्सप्रेस करें कि मैंने नेचर में आज ये चीज़ें देखी। जब आप वो देखते हो ना, आपको अलग ही चीज़ें फ़ील होती हैं कि वॉव! अदर देन योर मोबाइल, ठीक है? तो ऐसे रिफ्लेक्ट करें कि यार आज मुझे ऐसा फ़ील हुआ, आज मुझे वैसा फ़ील हुआ। ट्राई टू नो योरसेल्फ, यू विल गेट टू नो कि आप बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और जान लें कि इफ यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ, द अदर नेवर विल, ओके? बिकॉज़ देयर इज़ अ वेरी गुड सेइंग व्हिच आई विल टेल यू, दिस इज़, इफ यू वैल्यू योरसेल्फ, पीपल विल वैल्यू यू। इफ यू लव योरसेल्फ, पीपल विल लव यू, ओके? लोग इनसिक्योर लोगों को पसंद नहीं करते। ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको बताती हूँ। दे विल चूज़ द कॉन्फिडेंट पर्सन ओवर एन इनसिक्योर वन। क्योंकि इनसिक्योर क्यूट लग सकता है बहुत कम टाइम के लिए कि ओह शी इज़ जेलस ऑफ इट, बट देन I mean, it's a very big problem if she's jealous of everyone, if she's insecure about everyone. You know, you wouldn't want a person who would feed these loops of insecurity, and then you will have to explain again and again, because this is very exhausting for the person living with it, and it is exhausting for the person in front of the one who's living it. You cannot see your favorite person always doubting yourself. You would, go for actually changing that particular favorite person of yours, because you can do that instead of changing the person. Because look, if I'm sort of confident girl and my person is very insecure, like, oh, you don't do this, oh, you don't do that, oh, you're happy without me, who are you, dear? Because I can change the favorite person thing, okay? इफ आई कैन नॉट चेंज योर इनसिक्योरिटी थिंग्स, एंड इट इज़ नॉट ईजी कि 24 साल या 25 साल या 20 साल कोई रहा है और मैं 2 साल में आके बदल, ओ डियर, इट इज़ अ वेरी टेम्पररी चेंज, इट इज़ एन इल्यूजन टू यू गर्ल्स, नो दैट हियर दिस, इट इज़ सच एन इल्यूजन दैट यू कैन चेंज समन, इट इज़ अडेप्टिव टेम्पररी बिहेवियर, और उसके बाद वो अपने ओल्ड टेक्टिक्स पे ज़रूर रिवर्ट होंगे, बिकॉज वो इंटरनली चेंज नहीं हुए थे, दे वर परफॉर्मिंग द चेंज फॉर यू, दे वर बीइंग एन एक्टर फॉर यू, दे डिड नॉट चेंज फ्रॉम विद इन। हाउ डू यू नो दिस? Contradictions. Keep a track. Keep a track. Now, research shows that even brief digital detoxes can significantly reduce stress, improve sleep quality, enhance interpersonal relationships. The key is consistency rather than perfection. क्या करना है? Consistent होना है. Perfection की फिक्र मत करो. At least you are consistent. At least you are disciplined. एक motivation वाला बंदा आज 10 चीज़ें करके कल एक करे. लेकिन एक consistent बंदा आज भी एक, कल भी एक, 50 दिन तक एक करेगा, और वो उस मोटिवेशन वाले से ज़्यादा 2-3 कदम आगे होगा। क्यों? और वो आगे भी करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट था। किसी को कंसिस्टेंसी पसंद नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाते हैं। मोटिवेशन कुछ वक़्त का इमोशनल ट्रिगर होता है, इमोशनल अरोज़ल होता है कि यार अभी मैं कर लेती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। बट देन कंसिस्टेंसी लीड्स यू वेयर यू आर, ठीक है? ओके। Now, creating sustainable digital wellness habits. Long term digital wellness isn't about competence. It's about developing healthy intentional relationship with technology that serves your life rather than dominating it.
क्या करना है इसमें हमें? डेली रिचुअल्स, हमें अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें बिना डिजिटल चीज़ों के अपने साथ या किसी हेल्प योर मॉम, यू विल फील गुड. Make tea and sit with your dad and talk about something. Okay, go help someone. Or you can just, wander around. You can see how beautiful the world is. Okay, accountability लेनी है. मुझसे कोई गलती हुई है तो ठीक है, मेरी गलती है. I will improve. I won't do this again. Okay, improve yourself. Take accountability for your actions. Do not blame others like तुम्हारी गलती है. अगर आप ऐसा करोगे ना, अभी तो आपको बहुत मजे आ रहे हैं. It's all good. In short term thing, you'll be like, हाँ मेरी गलती नहीं है and all of that. But then in long term, क्या है ना, आप अगर अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो सफ़र आप करेंगे, बिकॉज सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे. अगर आपकी ब्लेम गेम की आदत होगी ना, तो आप जान लें कि ब्लेम आप कर देंगे और दूसरा वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो फ़र्क आपको पड़ने लगेगा. ओके, सेल्फ कंपैशन, अपने आप को माफ़ करना चालू करें. वो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को याद करना बंद करें और अपने आप से नफरत करना बंद करें. अपने आप को जानना चालू करें, आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं. वैल्यू करें अपने आप को. ओके, जो आपको चीज़ें पता है अपने बारे में, अपने आप के साथ हार्श ना हो, अपने आप के साथ थोड़ा सॉफ्ट बिहेव करें. मैं हमेशा कहती हूँ, सेल्फ लव ऐसे होना चाहिए, आपका फेवरेट पर्सन है, कोई भी उसे ले लें, ठीक है. वैसे तो फेवरेट पर्सन आपके आप ही होने चाहिए, बट ये बाद में होता है लोगों के लिए, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. मैं एक एग्जाम्पल अपने आप को ये देती हूँ कि इफ़ हेयर देयर इज अ स्मॉल इनोसेंट किड, ओके, in front of me, which I love like nothing, would I be doing the same thing which I'm doing to myself? If no, then the answer is no. Okay. तो आप अपना फेवरेट पर्सन देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी फेवरेट पर्सन हूँ, मेरा बचपना मेरा फेवरेट है, तो मैं अपने लिए ऐसे सोचती हूँ कि अगर मेरे पास वो होती तो क्या मैं उसके साथ ये होने देती? नहीं. तो मैं अपने साथ कैसे होने दूँ, क्योंकि मैं तो वही हूँ, राइट. तो आप अपना फेवरेट पर्सन इमेजिन करें कि अगर कोई उसे ऐसे चिल्लाता तो मैं क्या करती, मैं स्टैंड लेती है ना. तो अपने लिए भी स्टैंड लूंगी. बी कंपैशनेट फॉर योरसेल्फ. इफ नो मीन्स नो, इट शुड मीन नो. You don't want to do it, don't want to do it. Okay, you want to do something, you should do something. Forgive your something. Okay, forgive yourself. माफ़ करना सीखें, आगे बढ़ना सीखें, ठीक है. वैल्यू अलाइनमेंट, आप जो चीज़ें बोली हैं ना, उसको करना भी है. एक्शंस एंड वर्ड्स शुड अलाइन. If I said at 9 p.m. I will be doing this, I should be doing that thing. If I'm not doing this, definitely an issue with me, a psychological one, and we don't want it, right? So that is what it is. Value align होना चाहिए, ठीक है. Regular assessment, हम उसको चेक भी करेंगे कि यार एक हफ्ते में मैं इतनी कंसिस्टेंट रही हूँ. वाह. ओके, वैलिडेट योरसेल्फ इंटरनली के ओके आई डिड दिस, दैट इज सो ग्रेट. मैं एक हफ्ते तक रही, मैं 2 हफ्ते तक भी रह सकती हूँ. इंटरनली वैलिडेट करें, अपने आप से खुश होना सीखें प्लीज़. अगर आप अपने आप से खुश नहीं होंगे तो दूसरे आपसे नाराज़ होंगे. इन अ मैनर कि अगर मैंने कुछ किया, एक्सटर्नल वैलिडेशन यही तो कोलैप्स करवाता है आपको. वो दूसरों के मूड आप पे थोपता है जो आपको नहीं करना है. अगर मैं अपने आप से खुश हूँ, यहाँ अभी कोई भी कैसा भी मूड लेके आ रहा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, बिकॉज़ आई एम हैप्पी. ओके, देन बिकॉज़ मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो आप नहीं कह सकते कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. बट अगेन, आपकी खुशी में अगर कोई भंग डालने आ रहा है ना, इट मीन्स के आपको अपनी लाइफ़ के डिसीजंस ठीक से लेने की ज़रूरत है और आपको लोग भी ठीक चूज़ करने की ज़रूरत है जो आपकी खुशी में थोड़ा खुश भी हों, ठीक है. ये नहीं कि आपकी खुशी देख के शी इज़ हैप्पी बट आई एम नॉट. लेट्स स्टील हर शाइन. Let's just dim her. Like, no, absolutely not. Okay, girl, celebrate yourself. Whoever it is, boy or girl, whatsoever, but human. Oh dear human, celebrate yourself. Okay. देन मूविंग फॉरवर्ड, अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है. अब जैसे आप कैसे करेंगे, आपको इस वीक में आपकी अपनी बाउंड्रीज जो है ना एस्टैब्लिश करनी है और ये करना है कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगी इंस्टाग्राम, इससे ज़्यादा ये नहीं करूंगी. ओके, फिर मंथ में, इस मंथ में मैंने इतना बेहतर किया है, वाह दैट्स सो ग्रेट. मैंने इतना कम किया टाइम, मैंने इतना अच्छा किया, इंस्टेंट मैंने ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी किया, यूल फील सो गुड विद योर सेल्फ. ओके, फिर क्वार्टर, फिर आप देखोगे कि वाह यार मैंने 6 मंथ्स में इतनी प्रोग्रेस किया, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. ठीक है, फिर आप ऐसे चीज़ों को करते जाओगे, आपकी हैबिट में आ जाएंगे. ऑन गोइंग मीन्स आप करते जाओगे एंड यूल फील सो रिलैक्स, यूल फील सो गुड. तो यहाँ पर हमारा जो डिजिटल डिटॉक्स एंड वेलबींग का टॉपिक है वो ख़त्म होता है. बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, रियल लाइफ कनेक्शंस को कनेक्ट करके, एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट करके, एग्जाम्पल्स देकर, जेंजी वाले टाइप्स, बिकॉज यू वुड अंडरस्टैंड इट बेटर. और उसके साथ एक बड़ी बहन की तरह मैंने आपको बहुत सारी इंसाइट्स भी दी हैं जो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली लुक ऑन टू. एंड आई वुड वॉन्ट ऑल ऑफ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड whoever is watching this video to succeed in life and to achieve something, and know that a person who achieves something starts one day, and every one day becomes a day one, and then day one becomes that one day. Okay, so remember, digital wellness is a journey, not a destination. Okay, in order to get the destination, you will have to fall in love with the process of it. Okay, and until and unless you do that, you cannot have that destiny. For example, if I want to be a professor, I need to love studying, because unless and until I study, how would I become a good professor?
Because in order to become a professor, I need to know things, right? Because I cannot just go and teach nothing. I will have to study. I will have to fall in love with the process of it. I will have to trust it. I will have to study. And then I can be something which I desire to be, right? So that is what it is. Your relationship with technology will evolve as you do change. They say nothing changes if nothing changes, okay? But you will say, I will change and everything will change. Okay. Be patient with yourself. Okay, be patient with yourself. It's okay. You cannot just, be something in just 2 years. No, it will take time, but know that it will happen. Okay. Celebrate small victories, as I told you, and then keep returning to your intention to live more fully in the present moment. How beautifully we ended this slide. And now, my dear students and whoever is watching this video, if you have any doubts, any perspectives which you would like to mention, the comment section is open for you. And thank you, everyone. I am Blooming Fire, and I wish you very, very good luck with your exams preparations. If you're gaining knowledge, salute and hats off to you. So, see you in the next video. Bye. Take care.